We will start with the question answers of this topic, the life in tropical and subtropical regions. So first we will discuss about MCQs. So we'll raise your hand for giving answers. Yes, beta, raise your hand for giving answers. First for MCQs. Anji Aditya. Yes, ma'am. Anji, first toucans are a type of? Birds. Yes, so this is a type of bird. And then manioc is a staple food of? Amazon. Okay. So next answer, Hanji Harshia. Hanji Harshia. Next third one. Yes, ma'am. Yes, Kolkata is located on the river Hooghly. Yes. And next? Yes, ma'am. Deodars and firs are a type of coniferous trees. Yes, so they are a type of coniferous trees. Okay. The next, Anji, for giving answer, keep your video on also while raising your hand. Yes, beta. Anji Madhav. Fifth, Yes. Bengal tiger is found in delta area. Yes, Bengal tiger is found in delta area. And in the matching, cotton textile will match with the? Varanasi. Yes, it will. Cotton textile, it is very famous in of वाराणसी आपकी बुक में नहीं दिया हुआ, लेकिन अब मैचिंग में है तो ये वाराणसी इसमें आएगा. ठीक है. सेकेंड, मलोका. सो व्हाट इज मलोका? हाँ जी, it will. Slanting roof. Yes, slanting roof. Okay. The next answer. अब इसके नेक्स्ट आंसर जो देंगे. हाँ जी, रेज योर हैंड बेटा फॉर गिविंग आंसर. हाँ जी, गौरीश. Yes, ma'am. Ma'am, pirhana fish. Yes, so pirhana is a type of fish and that is found in Amazon basin. ठीक है, वहां basin की rivers में. And then silkworm is related with? Ma'am, I think so. Assam. Silkworm. आपकी बुक में Ma'am, वैसे silkworm और काजीरंगा. नहीं, silkworm. हाँ जी, वैसे सिल्क आपकी बुक में ये दिया हुआ है कि सिल्क इज प्रोड्यूस्ड इन बिहार एंड असम आल्सो, लेकिन अब काजीरंगा इसके साथ भी असम मैच कर रहा है बिकॉज वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज आल्सो फाउंड इन असम, है ना. दैट्स काजीरंगा. इट इज वाइल्ड लाइफ सेंचुरी दैट इज फाउंड इन असम. सो नाउ द सिल्क वॉर्म, अब ये किसके साथ मैच होगा? क्योंकि मैचिंग है ना, तो फिर हम तो इसे मैचिंग करनी पड़ेगी. हाँ जी, हाँ जी गौरीश. Ma'am, I think so. Sericulture. यस, सेरिकल्चर. ठीक है, क्योंकि Yes, ma'am. सिल्क वॉर्म इज रियर्ड फॉर मेकिंग सिल्क, सो इट इज कॉल्ड सेरिकल्चर. ये भी आपकी बुक में नहीं दिया हुआ बट इट इज रिलेटेड विद सेरिकल्चर. ठीक है, टॉपिक के बीच में नहीं है ये दोनों वर्ड्स. ओके, तो अब ये हो गए हमारे मैचिंग और मैचिंग और टिक क्रॉस. ठीक है, टिक द करेक्ट आंसर. अब हम देखते हैं इसके क्वेश्चन आंसर्स. क्वेश्चंस जैसे फर्स्ट है, नेम द कॉन्टिनेंट in which Amazon basin is located.
हाँ जी भावेश, कीप योर वीडियो ऑन बेटा। हाँ जी भावेश। मैम साउथ अमेरिका। Yes, so continent in which Amazon basin is located is South America. Okay. So next is what are the crops that are grown by the people of Amazon basin? What are the crops? हाँ जी ज्योतिन। Ma'am, the crops that are grown by the people of Amazon basins are tapioca, pineapple, and sweet potato. Yes, so they are tapioca, then pineapple and sweet potato. These are the main crops, but they also grow cash crops like coffee, maize, cocoa, है ना? तो उन्होंने सिर्फ हमसे क्रॉप्स पूछी है, तो हम ये भी बता सकते हैं साथ में। ओके, then name the birds that you are likely to find in rainforest of Amazon. हाँ जी सक्षम। Yes, ma'am. Hummingbird, a bird of paradise, and tokens. Yes, so इसमें हम लिख सकते हैं toucans, hummingbirds, and bird of paradise. So these birds are likely to be found in rainforest of Amazon. उसके बाद, what are the major cities? They are located on the river Ganga. हाँ जी बेटा। The student who have not given any answer, they also may raise hand. Madhav, your video is not on, beta. हाँ जी माधव। Ma'am, the cities are Allahabad, Kanpur, Varanasi, Lucknow, Patna, and Kolkata. Yes, so these are the cities: Allahabad, Kanpur, Varanasi, Lucknow, Patna, and Kolkata, which are located on river Ganga. So next is where is one-horned rhinoceros found? हाँ जी हरमीत। One-horned rhinos is found in the Brahmaputra plain. Yes, so they are found in Brahmaputra plain area. तो ये हो गए इसके शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। तो अब इसी में है लॉन्ग क्वेश्चंस भी हैं इसमें ये। तो ये है गिव रीजन। अब रीजन किसके लिए देना है हमें? फर्स्ट, द रेन फॉरेस्ट आर डिप्लीटिंग। रेन फॉरेस्ट, कौन से रेन फॉरेस्ट? और डिप्लीटिंग मीन्स कि दे आर डिस्ट्रॉइंग, कि वो सारे डिस्ट्रक्ट हो रहे हैं, डिमिनिश हो रहे हैं, खत्म हो रहे हैं। ठीक है, हाँ जी, सो रेज योर हैंड बेटा। हाँ जी भावेश। The rainforests are depleting because of development activities which destroy the biology diversity of rainforest through deforestation and hunting. Yes, any other point do you want to add? इसमें और कोई पॉइंट आप ऐड करोगे? हाँ जी गौरीश, एनी अदर पॉइंट यू वांट टू ऐड? हाँ जी, डू यू वांट टू ऐड एनी अदर पॉइंट? नो? हाँ जी सुहाना। Yes, ma'am. Slash and burn activity. Yes, so this is also one of the activity which is ruining these forests. Okay, any other point? Erosion of topsoil. Yes, it is also one of the implication of this method they are using. ठीक है, तो अब इसमें हम रेन फॉरेस्ट क्या हो रहे हैं? डिप्लीट हो रहे हैं, है ना? रेन फॉरेस्ट ये कौन से हैं? अमेज़न के। ठीक है, दीज रेन फॉरेस्ट और अमेज़न रेन फॉरेस्ट। तो इसमें हम क्या लिखेंगे? सबसे पहले तो हम लिख सकते हैं इसमें डेवलपमेंटल एक्टिविटीज। कि जो डेवलपमेंटल एक्टिविटीज हो रही हैं
in these rainforest area, so they are leading to these gradual destruction of these forests. उनकी वजह से ये फॉरेस्ट की डिस्ट्रक्शन हो रही है, which are so biological diverse forest. अब वो डेवलपमेंटल एक्टिविटीज क्या है, जैसे रोड्स की कंस्ट्रक्शन हो रही है या इंडस्ट्रीज यहाँ पे बनाई जा रही है ना. सो ऑल दीज आर डेवलपमेंटल एक्टिविटीज व्हिच आर टेकिंग प्लेस इन दीज रेन फॉरेस्ट. सो दिस इज आल्सो वन ऑफ द रीजन. ठीक है. देन इसके साथ एक लार्ज एरिया हम कह सकते हैं वो डिसअपियर हो रहा है फॉरेस्ट का. तो वो लार्ज एरिया डिसअपियर क्यों हो रहा है, बिकॉज ऑफ, अब जहां पे जो उनके कल्टीवेशन के मेथड है ना, कल्टीवेशन का मेथड कौन सा है उनका, स्लैश एंड बर्न मेथड. उसमें भी तो क्लियर करके फिर ही कल्टीवेशन करते हैं, है ना. तो वो मेथड, इट इज आल्सो वन ऑफ द रीजन. ठीक है, दैट इज व्हाई द लार्ज एरिया इज आल्सो डिसअपियरिंग. उसके बाद अब इसी में हम ऐड कर सकते हैं कि ये जो डिस्ट्रक्शन हो रही है बिकॉज ऑफ दीज डेवलपमेंटल एक्टिविटीज और ड्यू टू द कल्टीवेशन मेथड, इससे क्या हो रहा है, इसकी आगे इम्प्लीकेशंस हो रही हैं. इम्प्लीकेशंस मतलब कि इससे जो उन फॉरेस्ट के ऊपर और क्या असर हो रहा है, डिप्लीट तो हो ही रहे हैं, लेकिन इसकी फर्दर इम्प्लीकेशन क्या है कि जो टॉप सॉइल है, वो टॉप सॉइल जब भी रेनफॉल, क्योंकि रेनफॉल तो यहाँ पे होती रहती है, डेली रेनफॉल होती है. ठीक है. तो जब रेनफॉल होती है, जो टॉप सॉइल होती है वो क्या हो जाती है, इट इज वॉश्ड अवे. और जब टॉप सॉइल वॉश्ड अवे हो जाती है तो वो लैंड सॉइल फर्टाइल नहीं रहती है, और जब फर्टाइल नहीं रहती है तो वहां पे क्या हमें देखने को मिलता है, बैरन लैंड. ठीक है. देन दिस लश ग्रीन फॉरेस्ट, इट हैज बीन टर्न्ड इनटू अ बैरन लैंडस्केप. ठीक है. तो ये पॉइंट्स हम इसमें बता सकते हैं दैट द रेन फॉरेस्ट आर डिप्लीटिंग. क्लियर. उसके बाद हाँ जी, पॉइंट्स क्लियर है बेटा ये, कि these, due to these all these reasons the rain forests are depleting. इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है why paddy is, give reason for the paddy is grown in Ganga Brahmaputra plain. कि why paddy is grown. हाँ जी भव्या. Yes, ma'am. Paddy soil grows in the Brahmaputra river because as paddy soil requires a lot of water, so in the Brahmaputra and the Ganga region, it sufficients the amount of the water. Yes. Any other point? और कोई पॉइंट इसमें ऐड कर सकते हो आप? हाँ जी, हर्षिता, हर्षिया और भव्या, any point you want to add? हाँ जी हर्षिया. Ma'am, there is high rainfall which is suitable for growing paddy as it requires sufficient water. Yes, there is high rainfall also that is suitable for growing paddy. ठीक है. ये पॉइंट्स नोट डाउन कर लिए, मैं इनको इरेज कर दूं. नोट डाउन कर लिए ये पॉइंट्स सभी ने? ठीक है. तो इसी पे फिर हम दूसरे के पॉइंट्स लिख लेते हैं. And ma'am, the soil alluvium. Yes. So यहाँ पे हमें क्या मिलता है देखने को. फर्स्ट हम इसमें कह सकते हैं, अब हमारा क्वेश्चन क्या है कि पैडी इट इज ग्रोन इन गंगा एंड ब्रह्मपुत्र रीजन, है ना. यही हमारा क्वेश्चन है कि व्हाई इट इज ग्रोन यहाँ पे, क्योंकि इस एरिया में बहुत ज्यादा ग्रो की जाती है. तो सबसे पहले आपने क्या बताया पॉइंट, एक तो सफिशिएंट वाटर का बताया. ठीक है, एक सफिशिएंट वाटर का बताया. दूसरा यहाँ पे क्या बताया पॉइंट आपने, फर्टाइल सॉइल का. ठीक है. एनी अदर पॉइंट फिर हम लिखे. हाँ जी भावेश, एनी अदर पॉइंट यू वांट टू ऐड? हाँ जी बोलो. Because these plains are best suited for paddy cultivation because it is requires sufficient water. These plains fulfill this condition. Yes, sufficient amount of water is available. Okay. हाँ जी हरमीत. Ma'am, lower portion of plains it gives adequate rainfall. Okay, adequate rainfall is here, so that is why यहाँ पे paddy is grown. तो सबसे पहले हम बता सकते हैं यहाँ पे कि the soil is very fertile here, है ना. Alluvial soil is found in this basin area.
The soil is very fertile, so that is why crops, they are in abundance. Then sufficient amount of water, because this paddy, this crop, it requires, इसको किस चीज की जरूरत है? It requires a lot of amount, large amount of water, है ना? तो that amount of water is available here. क्यों? Because of rainfall. यहाँ पे rainfall proper होती है, so that is why adequate amount of water for irrigating this crop is available. और ऊपर से यहाँ पे flat land is also available because this is plain area. Flat land available है, so that is also suitable for cultivation. Flat land है, soil fertile है, sufficient amount of water है, ठीक है? So these all add to the features for what the paddy can be grown very easily here. Hanji, Gaurish, which point you want to add? Keep your video on. Hanji, bolo. Yes, ma'am. Here the temperature is suitable for growing the paddy soil. That's why the cultivation is easy in this area. Yes, क्योंकि कोई भी क्रॉप हो उसको एक सूटेबल टेम्परेचर चाहिए, सूटेबल सॉइल चाहिए. Yes, ma'am. अगर वहां पे सॉइल सूटेबल है, वाटर अवेलेबिलिटी है, टेम्परेचर अवेलेबिलिटी है, तो वहां पे वो हो जाएगा. तो वो भी आप ऐड कर सकते हो. सूटेबल टेम्परेचर इज ऑल्सो अवेलेबल हियर. और कोई पॉइंट? हाँ जी, एनी अदर पॉइंट? ठीक है, तो यहाँ पे land is flat, land is available, soil is very fertile, sufficient amount of water is also available as there is adequate rainfall. और एक और चीज है, ये क्या है? गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन है. अगर रेनफॉल कभी कम भी हुई तो इरिगेशन के मेथड डेवलप किए जा सकते हैं. यहाँ पे फ्रॉम रिवर द वाटर कैन बी अवेलेबल फॉर इरिगेशन, इरिगेटिंग द फील्ड ऑफ पैडी क्रॉप. सो इफ एनी टाइम द रेनफॉल इज लेस, अगर कभी रेनफॉल लेस होती है या कुछ भी है, रेनफॉल के ऊपर तो नहीं ना डिपेंडेंट रह सकती. तो इफ रेनफॉल इज लेस देन वाटर कैन बी अवेलेबल फ्रॉम, वाटर कहाँ से अवेलेबल हो सकता है? वाटर कैन बी अवेलेबल फ्रॉम कैनाल्स, फ्रॉम द रिवर्स. अलग अलग रिवर से हम कैनाल्स बना के भी तो वाटर अवेलेबल कर सकते हैं, क्योंकि इस रिवर को पानी बहुत चाहिए होता है. ठीक है, sufficient amount of water is required for this crop. So if rainfall is less, then water can be get available from various canals from the river Ganga. तो गंगा रिवर से भी हम क्या कर सकते हैं? गंगा ब्रह्मपुत्र रिवर से इजिली हम वाटर ले सकते हैं, इरिगेट कर सकते हैं अपने फील्ड को. ठीक है, so all these points that you can write in this, that so these are the reasons that paddy is grown in Ganga Brahmaputra region. Clear? So now this chapter is complete. So in this chapter we have discussed about two regions, tropical, subtropical region. Tropical region कौन सा था? Amazon basin. And subtropical region Ganga Brahmaputra basin. ठीक है, अब जो ट्रॉपिकल रीजन था ये कैसा था? Very hot and wet climate was there, and this subtropical region, यहाँ पे मानसून टाइप ऑफ क्लाइमेट था, है ना? समर्स भी है, विंटर्स भी है, रेनी सीजन भी है, ऑल दी सीजन इन दिस सबट्रॉपिकल रीजन, जो हमने गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन के बारे में पढ़ा. ठीक है, अब इसके बाद जो हमने नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करना है, दैट इज अबाउट, इसमें भी हमने क्या पढ़ा? ह्यूमन एनवायरमेंट इंटरेक्शंस, लाइफ इन ट्रॉपिकल सब ट्रॉपिकल रीजन. वहां पे भी हम ह्यूमन एनवायरमेंट इंटरेक्शंस के बारे में पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक में, और वो पढ़ेंगे डेजर्ट एरिया में. ठीक है, कहाँ पे हम देखेंगे? ये पॉइंट्स नोट डाउन कर लिए ना बेटा सभी ने? तो जो इसके हम नेक्स्ट देखेंगे वो हम देखेंगे डेजर्ट एरिया में. अब जब डेजर्ट की हमारे माइंड में हम बात करते हैं डेजर्ट की, तो हमारे माइंड में क्या इमेज आती है? एक डेजर्ट की इमेज क्या आती है हमारे माइंड में? हाँ जी, व्हाट इमेज कम्स इन योर माइंड
when we talk about this desert? Hanji Harmeet? Ma'am, in the desert there is sand and a common animal like camels. तो जब हम डेजर्ट के बारे में सोचते हैं, हम सोचते हैं कि देयर इज सैंड ऑल अराउंड, ठीक है, कैमल्स, देयर आर कैमल्स, और तो इस तरह की इमेज हमारे माइंड में Ma'am, आती है। plants like cactus. यस, तो और प्लांटेशन, वो ट्रीज वगैरह नहीं हमारे माइंड में आते, ट्रीज नहीं ना आते कि वहां पे कोई ट्रीज भी होंगे, फॉरेस्ट भी होंगे, वहां पे सिर्फ कैक्टस, इस तरह के छोटे मोटे प्लांट्स ही हमें विजिबल हमारे माइंड में आते हैं कि यही प्लांट्स होंगे। और कुछ एनी अदर पॉइंट डू यू वांट टू ऐड? डेजर्ट के बारे में जब हम इमेजिन करते हैं तो और क्या सोचते हैं? कि दैट लाइफ कैन बी इजी, लाइफ इजी होगी डेजर्ट में। अगर अभी हमने 2 रीजन्स के बारे में पढ़ा, ठीक है, 2 रीजन्स हमने कौन कौन से देखे? एक हमने देखा गंगा ब्रह्मपुत्र प्लेन का और एक अमेज़न का। इन दोनों में से कहा कि लाइफ ज्यादा इजी लगी आपको? इन दोनों में से गंगा ब्रह्मपुत्र प्लेन एरिया की ज्यादा इजी लगी या फिर आपको अमेज़न बेसिन में ज्यादा इजी लगी लाइफ? डेजर्ट में तो उससे भी मुश्किल है ना। हाँ जी, कीप योर वीडियो ऑन बेटा फॉर गिविंग आंसर। हाँ जी सक्षम। Yes, anyone else? हाँ जी, तो डेजर्ट की लाइफ अगर अमेज़न में, तो हमें देखा कि वहां का सिर्फ वेट और हॉट क्लाइमेट है ना, तो डेवलपमेंटल एक्टिविटीज वो फॉरेस्ट है वो भी डिप्लीट हो रहे हैं। नो डाउट डेवलपमेंटल एक्टिविटीज कुछ ना कुछ स्टार्ट हुई हैं, ट्रांसपोर्टेशन भी डेवलप हुई है, बट गंगा ब्रह्मपुत्र के जो एरियाज थे वहां पर क्या है, वहां पर तो पीपल लोग जो हैं वो बहुत ज्यादा उनकी पॉपुलेशन है, गंगा की बैंक्स के जितने मेजर सिटीज डेवलप हो गए हैं, अलग अलग तरह की ऑक्यूपेशंस कर रहे हैं वो, है ना, मतलब वहां पे उनके पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज हैं, उतनी सारी अपॉर्चुनिटीज अमेज़न बेसिन में जो लोग रह रहे हैं उनके पास नहीं थी। और अगर हम डेजर्ट की बात करते हैं तो यहाँ के लोगों की लाइफ तो और भी हम इमेजिन करते हैं कि कितनी डिफिकल्ट होगी व्हेन देयर इज नो वाटर टू ड्रिंक, because when we imagine of a desert then there is all sand and sand all around, है ना, तो then it means there is no water to drink, है ना, for a large distances, then water means life. If water is not available then how life can be possible there? So it means if there is no water to drink, there is no grass for their cattle, for their animals also, and there is no crop for them also that they can grow crops. अब इसी चैप्टर में हम ऐसे कुछ प्लेसेस के बारे में देखेंगे जहां पे लोगों ने इस तरह की कंडीशंस में भी अपने आप को अडॉप्ट कर लिया है। जैसे ट्रॉपिकल रीजन में, वहां पे भी अमेज़न के लोगों ने अपने आप को उस एक्सट्रीम वेदर में अपने आप को अडॉप्ट कर लिया है। दे हैव लर्नड हाउ टू लिव इन बैलेंस विद द नेचर, ठीक है। गंगा ब्रह्मपुत्र प्लेन, वहां के लोगों ने उसके अकॉर्डिंगली अपने आप को अडॉप्ट कर लिया है। So here the people who are living in desert areas, they have also adapted themselves to with the nature, ठीक है, that how they can cope with the extreme conditions of that desert. What do you mean by desert? Desert क्या होता है? एक dry region, there is no vegetation, there is no rainfall, ठीक है, there is no rainfall, there is no vegetation and there is extreme temperature. अगर summer है तो summer extreme होगी, अगर यहाँ पे विंटर है, कोल्ड है, तो कोल्ड एक्सट्रीम होगी। तो इसी टेम्परेचर, मतलब जरूरी नहीं है कि एक्सट्रीम गर्मी होगी तभी वहां पे डेजर्ट है, अगर एक्सट्रीम ठंड है तो भी वहां पे डेजर्ट होता है, ठीक है। तो जैसे कि अब एंटार्क्टिका कॉन्टिनेंट है, वहां पे क्या है, देयर इज ऑल आइस ही है वहां पे, है ना, तो दैट इज ऑल्सो डेजर्ट, वहां पे कोई है ही नहीं, लाइफ ही नहीं है वहां पे। तो लेकिन हमने किस डेजर्ट के बारे में पढ़ना है? जहां पे लाइफ है, जहां पे लोग रह रहे हैं, ठीक है। तो ये भी डेजर्ट एरिया है। अब टेम्परेचर के बेसिस पे 2 तरह के डेजर्ट में हमने डिवाइड कर दिया है। फर्स्ट हॉट डेजर्ट
and then second cold desert. ठीक है, so two desert, about two desert we will read in this topic. So these are the desert areas of the world. यहाँ पे क्या होगी, low rainfall, less vegetation and extreme temperature. ठीक है, टेम्परेचर अगर यहाँ पे गर्म है और on the basis of temperature there is hot desert and cold desert. ठीक है, in hot desert there is extremely hot, in cold desert they are extremely cold. ठीक है, तो अब इन दो डेजर्ट के बारे में हम पढ़ेंगे. So these two desert, one अगर हम जो हॉट डेजर्ट पढ़ेंगे वो है साउथ अफ्रीका में, सॉरी अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में, और जो हम कोल्ड डेजर्ट पढ़ेंगे वो है इंडिया कॉन्टिनेंट में. अब इंडिया में कौन कौन सा डेजर्ट है? विच डेजर्ट वी फाउंड इन इंडिया? हाँ जी, इंडिया में हमें कौन सा डेजर्ट मिलता है? जो चैप्टर में नहीं है वो नहीं जरूरी, कोई भी कौन सा हमें डेजर्ट इंडिया में मिलता है. इंडिया के डेजर्ट के बारे में तो पता ही है ना बेटा आपको. हाँ जी, हाँ जी भव्या, कीप योर वीडियो ऑन बेटा. हाँ जी, कौन सा डेजर्ट है इंडिया में? मैम थार डेजर्ट इन राजस्थान. यस, राजस्थान में. और वो कौन सा डेजर्ट है, हॉट डेजर्ट के कोल्ड डेजर्ट? मैम हॉट डेजर्ट. दैट इज हॉट डेजर्ट. ठीक है, और यहाँ पे जो हम बात करेंगे सहारा डेजर्ट की, तो सहारा डेजर्ट के बारे में आपने सुना हुआ है, तो वो कौन सा डेजर्ट है, हॉट के कोल्ड डेजर्ट? हाँ जी हरमीत. मैम हॉट. सहारा डेजर्ट भी हॉट है. ठीक है, तो इस चैप्टर में हमने एक हॉट डेजर्ट की बात करनी है, एक कोल्ड डेजर्ट की बात करनी है. तो जो अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में सहारा डेजर्ट है वो हॉट डेजर्ट है, तो उस हॉट डेजर्ट की बात करेंगे. और अगर हम इंडिया में से डेजर्ट की बात करेंगे तो वो हम डेजर्ट की बात करेंगे, कोल्ड डेजर्ट की बात करेंगे. ठीक है, और वो कोल्ड डेजर्ट कौन सा है? लद्दाख रीजन में. ठीक है, क्योंकि वहां पे भी डेजर्ट का मतलब क्या है? डेजर्ट मीन्स ड्राई रीजन. देयर इज लेस वेजिटेशन, देयर इज नो रेनफॉल और वेरी लेस रेनफॉल. ठीक है, लेस वेजिटेशन और टेम्परेचर एक्सट्रीम. एक्सट्रीम चाहे वो कोल्ड है तो कोल्ड भी एक्सट्रीम, अगर वो हॉट है तो हॉट भी एक्सट्रीमली हॉट. तो डेजर्ट मीन्स कि कोई भी टेम्परेचर है तो वो टेम्परेचर कैसा होगा? एक्सट्रीम होगा. हॉट डेजर्ट अगर जैसे हम सहारा की बात करें तो अगर सहारा में वहां पे क्या है, क्लाइमेट है तो एक्सट्रीमली हॉट है, अगर वहां पे कोल्ड है तो एक्सट्रीमली कोल्ड है. ठीक है, हाँ जी अहिल्या, योर हैंड इज रेज्ड, कीप योर वीडियो ऑन. एक हम इस सहारा डेजर्ट के बारे में करेंगे. ये हॉट डेजर्ट हो गया. ठीक है, और ये डेजर्ट कहाँ पे है? इट इज लोकेटेड, अब यहाँ पे देखो, ये अफ्रीका कॉन्टिनेंट है और यहाँ पे ये सारा सहारा डेजर्ट है. और almost 11 countries they are included in this desert. ठीक है, और ये सारे this is in the continent of Africa. ठीक है, लार्ज पार्ट मतलब ये नॉर्थ, ये जो साउथ अफ्रीका नीचे वाला हो गया, ऊपर वाला नॉर्थ अफ्रीका हो गया. तो नॉर्थ अफ्रीका का मतलब हाफ से भी ज्यादा पार्ट तो डेजर्ट एरिया में ही है, और ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट डेजर्ट है. ठीक है, अगर इसके हम एरिया की बात करें तो इसका एरिया कितना है? 8.54 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर. और इंडिया का एरिया वो भी आपने ज्योग्राफी में किया था, दैट इज 3.2 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर. मतलब इंडिया का अगर ये इतना था 3.2 है ना, और ये पूरा 8.54, मतलब इसका एरिया भी मतलब इंडिया से मतलब डबल से भी ज्यादा ही हो गया है ना. तो इट मीन्स बहुत बड़ा डेजर्ट एरिया है ये, और इसमें 11 कंट्रीज हैं, जैसे ये वेस्टर्न सहारा, मॉरिटानिया, अल्जीरिया, माली, नाइजर, लीबिया, इजिप्ट. ठीक है, ये चाड, सूडान, ये सारे जो इसमें है. और इसी में एक और है ट्यूनीशिया, वो यहाँ पे लिखा नहीं हुआ. ठीक है, तो वो भी इसी यहाँ पे. ठीक है, तो वो भी इसी डेजर्ट का एक पार्ट है. तो ये 11 कंट्रीज ये मिलके इस डेजर्ट को बनाते हैं. मतलब इन
11 कंट्रीज में ये डेजर्ट हमें मिल रहा है, और इसको हम टुगेदर क्या कहते हैं, सहारा डेजर्ट। जैसे इंडिया में राजस्थान है, राजस्थान डेजर्ट किस डेजर्ट का एक पार्ट है, थार डेजर्ट का पार्ट है ना, तो वो थोड़ा सा इंडिया में है, कुछ पाकिस्तान में भी है रीजन उसका, तो वो इंडिया का डेजर्ट हो गया, ठीक है। और यहाँ पर एक ठीक है, चलो इसको हम कंटिन्यू रखेंगे इसको, ओके, इसकी डिस्कशन को। ओके देन, थैंक यू बेटा।